Hi, so if you are an MBBS student and आपने एंकी के बारे में सुना है but you don't know exactly what it is and कैसे काम करता है, then don't worry, I'm here to give you a basic overview. जब मैंने पहली बार एंकी यूज़ करना स्टार्ट किया था तो तब मुझे लगा था कि लोग बस इसे हाइप कर रहे हैं, बट एक्चुअली इतना वास्ट सिलेबस याद रखने के लिए इट रियली हेल्प्स. इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग एंकी क्या होता है, इससे MBBS में यूज़ कैसे करते हैं, एंड हाउ आई पर्सनली यूज़ एंकी फॉर सब्जेक्ट्स लाइक फार्मा, माइक्रो एक्सेट्रा, एंड हाउ इट हेल्प मी स्कोर सेकेंड रैंक इन माई सेकेंड ईयर. This will be no complicated tech talk, just some simple real life examples. So basically Anki is a digital flashcard app जहाँ पर आप questions भी बना सकते हैं and उसके answers भी लिख सकते हैं साथ साथ में. लेकिन ये normal flashcard से क्यों different है? This is because it works on a special algorithm. इस algorithm में जो भी cards आपको ज़्यादा मुश्किल लगते हैं वो ज़्यादा frequently repeat होंगे आपके लिए, and जो questions आपको आसान लगते हैं they will be shown to you later on. So why is this so important? This is because when we read something for the first time, our mind stores this information temporarily, and कुछ time के बाद हम इस information को भूल जाएंगे. This is called Ebbinghouse's forgetting curve, first described in 1880. Basically उसने ये समझाया था कि your memory will decline in the first few initial hours after learning a new concept, especially in the initial hours after you learn that thing for the very first time, unless you reinforce that information in your head. This concept has been tried and tested on real people and the science doesn't lie. यहाँ spaced repetition का concept आता है, where you learn the same thing over and over again so that concept sticks to your mind permanently. Anki इसी concept पर काम करता है, except its algorithm is personally tailored to you. मतलब just as you're about to forget, Anki दोबारा वही चीज को याद दिलाता है. इससे आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती. MBBS में सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द एंटायर थिंग. स्पेशली जब एग्ज़ाम पास आता है तब माइक्रो और फार्मा जैसे सब्जेक्ट्स को याद करना एकदम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, एंड उस सिचुएशन में एंकी एकदम लाइफ सेवर बन जाता है. ये आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने में हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है, एंड आपको लास्ट मिनट क्रैमिंग से बचा देता है. When I was in first year, I did not use Anki that consistently, and this reflected in my first year prof exams. क्योंकि despite multiple revisions, I had forgotten many things. In second year, I decided to take things more seriously, and I consistently kept up with my Anki. मेरे लिए especially useful था in subjects like microbiology and pharmacology, क्योंकि just before exams, even though मैं किताब से पूरा syllabus revise नहीं कर पाई, because I had that knowledge from Anki, I still wrote good answers during the exam. कंप्यूटर पे आप Anki को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं from anki.net, and on devices like tablets and mobiles, you can access Anki through their website anki.net. Samsung में Anki का ऐप फ्री होता है, but for some reason they do charge quite a lot for Apple. So I suggest कि आप Google या Safari से ही access कर लो. First, you have to make your account online so that your cards can sync to the application. So once you open your Anki app, it should look something like this. You have several options such as Dex, Add, Browse, Stats, Sync, and more. For example, I have this new deck that I made called Micro. अब मुझे इसमें cards add करने हैं. So I click on the Add button. अब यहाँ पर डेक माइक्रो आ गया इन पर्टिकुलर. आई चेंज दिस टू बेसिक, चूज, एंड नाउ यू हैव दिस सिंपल फ्रंट एंड बैक ऑप्शन जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल, कैन लिस्टेरिया सर्वाइव इन कोल्ड टेम्परेचर्स, एंड इसका जवाब यहाँ पर आएगा जहाँ पर ये बैक का ऑप्शन लिखा है. सो द आंसर इज yes. यहाँ पर आप अपने टैग्स कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टैग दिस इन माइक्रोबायोलॉजी, राइट? ठीक है, अब मैंने इसको ऐड कर दिया. नाउ व्हेन आई गो ऑन माइक्रो, आई विल सी दैट देयर इज अ न्यू कार्ड. दिस कार्ड इज अ न्यू कार्ड. सो आई क्लिक ऑन स्टडी नाउ, एंड अब यहाँ पर ये शो होगा. आई क्लिक द आंसर, एंड नाउ आई गॉट द आंसर. अब मैं ये वाला ऑप्शन देखती हूँ कि मुझे ये कार्ड कैसा लगा,
कि मैं आसानी से आंसर कर पाए या नहीं कर पाए, वॉज इट डिफिकल्ट फॉर मी, एंड मेरे लिए बहुत आसान था क्वेश्चन, सो आई क्लिक्ड ऑन ईजी। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन ब्राउज, आई विल फाइंड दैट यहाँ पर जितने भी मेरे टैग्स हैं यहाँ पर सब दिखेंगे। यहाँ पर वो भी टैग आया जो मैंने अभी आपके सामने किया था, विच वॉज अ माइक्रोबायोलॉजी टैग, एंड इसमें यही कार्ड आया जो मैंने अभी टैग किया है। एज यू कैन सी यहाँ पर टैग हुआ है। आई थिंक फॉर बिगिनर्स इतना ही पता होना चाहिए, बाकी आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अलावा, बट आई वुड सजेस्ट सीइंग द वीडियोस आई हैव लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल ऑन हाउ टू यूज दैट। एज यू कैन सी देयर इज अ सिंक ऑप्शन एज वेल, एंड इसको करने से बेसिकली जितने भी आपके कार्ड्स हैं वो कार्ड्स एंकी के सर्वर्स में चले जाएंगे, सो दैट यू कैन एक्सेस योर कार्ड्स यूजिंग एनी वेब एप्लीकेशन, चाहे कोई भी डिवाइस का हो। इफ यू लॉग इन यूजिंग दैट डिवाइस, you can access your cards जो आपने किसी और डिवाइस में बनाया होगा, and that is a super great tool. Anki में आप different type के cards बना सकते हो. I have listed a few examples and you can read through them and understand how they work. एंड इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं एंकी में, बट आई डोंट वांट टू ओवरवेलम यू. आई जस्ट वांट टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस एप्लीकेशन वर्क्स. आई हैव अ फ्यू add-ons which you can download, such as this heat map as well as my UWorld add-on. But beyond this, I have not explored Anki to its full potential क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी. Definitely there are more features that you can explore. If you need more information of the different features of Anki, then you can check out the videos I have linked in the description क्योंकि वो मेरे से 100 गुना ज़्यादा बेटर समझा देंगे. अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम खुद के टेक्स्ट बनाएं या फिर हम प्रीमेड वाले यूज करें. अगर आप USMLE की तैयारी कर रहे हो, देन प्रीमेड टेक्स्ट लाइक एंकिंग रियली हेल्प. एंकिंग आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट आपको उसके कार्ड्स के अपडेट्स नहीं मिलेंगे. मेडिकल फील्ड में अपडेट्स होते रहते हैं, सो पर्सनली आई हैव टेकन अप सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ईयर, बट इन 2nd ईयर आई यूज द फ्री वर्जन. अब अगर हम इंडियन MBBS के करिकुलम की बात करें, then what I do is common topics such as micro या pharma I cover using pre-made texts, and अगर कोई इंडियन स्पेसिफिक या कॉलेज स्पेसिफिक के टॉपिक्स होते हैं, then I just make my own cards for them. For NEET PG purposes, लोगों ने अपने decks बना रखे हैं already, such as this pre-made deck I found on Reddit. In fact, I discovered that there is a whole subreddit for using Anki for Indian students, so you can go check that out. So you don't have to make each and every card by yourself. I would suggest to rely more on those pre-made decks just to save time. मैं ऑलमोस्ट रोज एंकी यूज करती हूँ, एंड देयर आर सम डेज वेयर आई कैन नॉट डू एज मच एज आई लाइक. कभी कभी कम हो जाता है, एंड दैट्स ओके. द पॉइंट इज टू डू अ लिटिल बिट एवरी डे, चाहे वो सिर्फ 100 कार्ड्स क्यों ना हो. एग्जाम के टाइम में एक फिल्टर डेक बनाती हूँ जिसमें स्पेसिफिक टॉपिक वाले कार्ड्स आ जाते हैं. जैसे पैथोलॉजी के लिए मैंने इन्फ्लेमेशन या हेमाटोलॉजी के कार्ड्स को फिल्टर करके उसको अलग किए. काफी टाइम सेव हो जाता है ऐसे करके. Now, if you want to make a filtered deck with specific topics, what you do is you go to tools and you create a filtered deck. अब इसमें आप सर्च कर सकते हो आपको कौन कौन से कार्ड्स चाहिए, and you can set these limits, and ये लिमिट्स काफी स्टैंडर्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑप्थेमोलॉजी का चाहिए, राइट? तो मैंने ऑप्थेमोलॉजी के ऐसे टैग के ऊपर क्लिक करके आई कॉपी दिस एंड आई पेस्ट इट हियर. अब ये स्पेशल फिल्टर टैग बनेगा विच हैज जस्ट द कार्ड्स आई वांट टू स्टडी. नाउ एंकी तभी काम करता है जब आप रेगुलरली यूज करो. अगर आपने ऐसे 5 दिन स्किप किया तो आपका बहुत सारा बैकलॉग बन जाता है. मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे कि आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट से यूज करो जब भी आप ऑटो में बैठे हो या रिक्शा में बैठे हो. आपको अपने कार्ड्स को टैग करना चाहिए विद सर्टेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सच एज माइक्रोबायोलॉजी का कार्ड है ये, या फिर ये स्पेसिफिक वायरस का ही कार्ड है, सो दैट इट्स ईजियर टू फाइंड दैट कार्ड. एंड फाइनली थोड़ा रोज करा करो, इवन 30 मिनट्स इज बेटर देन नथिंग. एंड कभी कभार स्किप भी हो जाता है, बट द आइडिया इज टू कीप कमिंग बैक.
सो ओवरऑल एंकी कोई मैजिक नहीं है, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपरली यूज करोगे तो MBBS के सिलेबस को याद रखने के लिए बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू लीव अ कमेंट एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। बाय।